भाजी ने बहुत सेवा निभा दी आज फिर। मसला बन गया है, बोलते हैं हमारे पास बंदे नहीं है, हाथ से डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं इजराइल से बन के आया ये। जब भी नॉर्थ में आना होता है कोई ना कोई पंगा पड़ना ही होता है। मूस भाई साहब आएंगे, मूस भाई साहब। जब भी ऐसे वाली जगह पे उतरना है, एक टिप देता हूँ, नॉर्दर्न लाइट। ठीक ठाक। थैंक यू वीरे, थैंक यू। चलो ठीक है वीरे। ਕੀ ਹਾਲ ਵੀਰੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਾ KS ਮਾਝਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੜਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕ ਹੈ, KS ਮਾਝਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੜਾ ਜਿਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਲੋਕਲ ਹੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਲ ਹੀ ਚਲੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਹਤਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਠਾਕ? ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰਾਂ ਖਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਕ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਾੜੀ ਠੱਕ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਜਾਂ 5 ਜੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਤੇ 5 ਆ ਨਾ। 3 ਹੀ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਕਿ ਲੱਗਦੇ 5 ਹੀ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੀ ਆ? ਇਹ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਂਡਲ ਨਾਲ ਢੇਡ ਦੇਈਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀ ਆ ਡਰਿੱਲ। ਆਓ ਡਰਿੱਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਜੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। कॉन्स्टैगा बोलते हैं इसको। कॉन्स्टैगा कहते हैं, और कहते हैं कुछ रोल किट। कोई रोल टैट बोलता है कि रोल किट। गोरे जो है इसको मोस्टली कॉन्स्टैगा बोलते हैं। ये ट्रक आपने पहले भी देखा, जिस दिन हमने डिलीवरी ली थी, प्लेटें ली थी, लाइटें देखो लगाई भाई ने। बढ़िया लगता है काम पूरा, बढ़िया लगती है लाइटां, सोहणियां लगदियां। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਉਹ ਲਾਈ ਥੱਲੇ। नहीं यार, सारे बहुत जचंदे आ जेडे ऊपर भी थल्ले भी, वो नाल मैच कर जाते अगले दे। नहीं यार, सारे बहुत पसंद आए मुझे। ऐसे वाले इशारे लगाएंगे जो छोटे ऊपर लगे हुए ना, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे, वहाँ पे, वहाँ पे। आप बंपर ले लिए यार भाई, है ना। अब मैं लोड ला के आना, फिर मारते हैं ट्राई, बना लांगे सलाह। ਤੁਹਾਡੇ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ? ਅੱਛਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ। ਹੈ ਜਗਾੜ ਵਧੀਆ, ਨਾਲੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਡ ਜੀ ਵੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭਾਜੀ ਸੇਮ ਹੀ ਮਾਡਲ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟੇਪ ਲਪੇਟੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਮੈਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਪੇਟੀਏ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲਪੇਟੀਏ ਇੱਥੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੋਟੀ लगती है। भाजी का ट्रक मैंने पहले भी आपको दिखाया था, ये 18 मॉडल, लेकिन लगता नहीं है। इसके सारे गियर का जो शिफ्टिंग का सिस्टम है ये लगाया हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो। और चल रहे चूल्हे मैंने पहले भी दिखाई थी। आई फिर देखो, मैं भाजी को बोल रहा था, मैं बोला मेरे को 2-3 साल लगे ना इतना श्रृंगारने में। भाई ने झंडा झुंडा लाया पीछे, देखो पूरा रौनक लाइया पई हैं। नहीं, बम्पर का भाजी को मैंने पक्का कर दिया। मैं बम्पर अभी जब भी आएंगे ना टोरंटो, अभी तो मैंने जाना है लोड लेके। आज एक विलक्षण ही लोड लेके जा रहे हैं, फिर से लेके ऊपर वाले का नाम निकलेंगे यहाँ से करके हुक, फिर देखते हैं आगे ऊपर वाले ने क्या लिखा हुआ है। ये आओ पहला तो वाल काले करिए, आमला कैंडी खा के चल रहा मैं कहना ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਮੰਗਾ ਲਈਏ ਭਰ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਬਰਸਰੋਂ ਗੋਲਬਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਘੱਲੂੰਗਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਫਥ ਵੀਲ ਦੀ ਸੂਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਗੈਰ ਫਿਫਥ ਵੀਲ ਦੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਫਿਫਥ ਵੀਲ ਦੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਐਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜੂ ਯਾਰ ਅੱਗੇ टायरों पे। आपको क्या लगता है ड्राइव के ऊपर भारा नहीं हो गए? 1000 किलो का एक है। कितना टन वजन आगे रख दिया? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आगे से सिंगल लेके आओ, थोड़े खिलारते हुए आ जाओ, यहाँ तक लेके आओ, है ना। सिंगल आगे 3 4 सिंगल रखते लेके आओ। ये तो अभी ओवरवेट है पक्का।
नहीं आ ही जानी है, आ गई के सही है। ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ। वेट तो मैंने हाले भी लगी था क्योंकि 17,000 किलो की कैपेसिटी मूरे तो 16 टन इतों तक पिया, इन्ना ट्राला अगों तो इन्ना ट्राला मगर खाली 605 वाला काम ही आ। भाजी ने बहुत सेवा निभा दी आज फिर। आप लोग देखो बम्पर कैसा है, ये बम्पर ऐसा वाला लगाएंगे, ये वाला, ये देखो सारी ग्रिल भी इसने ऊपर तक सेव कर दी है ना। कितना सही लग रहा है इस तरफ को भी। चली केएस माझा। अंकल जी ट्रक बड़ा श्रृंगार के रखते हैं, बाबा जी चढ़ती कला करें। इतने एक्सल चलाते हैं ये टोरंटो में। स्केल की ना होने की वजह से बड़ी दिक्कत आ रही है। भाई चलती है कि नहीं? स्केल के ऊपर ट्रक खड़ा किया, स्केल के ऊपर कोई आवाज़ नहीं आ रही। कहना तो दो एक दिन चलाने वास्ते। होर सुनाओ, ठीक ठाक हो? किवें सेहतां? डन है, डन फॉर द डे हो गया है। चलो वधिया टाइम ना। किन्ने बजे शुरू कर, अर्ली स्टार्ट किया होना ना? हाँ जी भाई 6 बजे जॉब शुरू है। 6 तो फिर ठीक है। मैं कहने लगा भाई 2-2:30 बजे कहने लगे, मैं क्या शायद। होर सुनाओ, सब ठीक ठाक? आओ ले चलिए। मैं यार जो है स्केल कराना नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? नहीं विनी बैग रहना मेरे। हाँ विनी बैग। और सब ठीक ठाक? चलो मिलते हैं। ओके ब्रदर, सी यू। भाई का ट्रक है, वेट अपना बिल्कुल सही आ गया भाई, बचाव हो गया। ये देखो 15,600 है तो काफ़ी वैसे, और 11,730। अगर सारे एक्सल आगे करके ना लेके आता तो यहाँ पे 16,500 वेट होना था। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। बहुत टाइम के बाद में अपने को एक ऐसा ट्रिप मिला है जैसे हम पहले जाया करते थे। ना तो नेटवर्क आएगा, ना वहाँ पे डीजल मिलेगा। न्यू लस्कर टाउन आपने सुना होगा, जो हम हर बार क्रॉस करके जाते हैं। हाईवे 11 के ऊपर न्यू लस्कर टाउन है। न्यू लस्कर टाउन से राइट मार के अंदर घुस के क्यूब के अंदर जाएंगे, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 1200-1300 किलोमीटर अंदर जाएंगे लोड लेके। इसलिए वेट करवाया था कि मालूम हो जाए कितना हैवी वेट है, क्योंकि हिलें बहुत आएंगी। कुछ मालूम नहीं कहाँ पे पार्किंग स्पॉट है, कुछ मालूम नहीं कहाँ पे नेटवर्क आएगा। लेकिन बस उस ऊपर वाले का नाम लेके, इस वॉल्वो पे भरोसा करके और उस ऊपर वाले का ऑट आसरा लेके लोड उठा लिया है। बाकी जो होगा आप लोग देखोगे, मैं भी देखूंगा। बारिश का मौसम है, ग्रेवल रोड भी। ओए ये क्या जुगाड़ है यार? आगे तो मालूम पड़ रहा है कि मोटर होम वाली बस है, लेकिन उसके पीछे देखो सेम टू सेम जुगाड़ डाला हुआ है। आपको आइडिया है कि तकरीबन 7-8 लाख डॉलर की मशीनरी है ये दोनों मिला के। नुकसान हो गया, ओए नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। जैसे ही पैप लगाया, ये देखो सारा ही अपने आप पैप बाहर आ गया भाई। इतना बचाव कि मैं पास में ही खड़ा था। अभी रिस्क नहीं लेंगे, सारा डीजल कर दिया बाहर। 1 लीटर तो गया होगा बाहर, नुकसान हो गया। कहाँ एक तुबका बचाते हैं, आज पूरे का पूरा 1 लीटर ही गिरा दिया नीचे। अभी जिस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जाने से पहले टैंकियाँ यहाँ से पूरी फुल करके जाएंगे। फिर यहाँ से 150 किलोमीटर आगे न्यू लस्कर है। न्यू लस्कर के पेट्रोल पास से फिर से एक बार टैंकी फुल करेंगे। इसका प्रेशर बहुत तेज़ है, और ये पैप पूरा है, और इसका लॉक नहीं लगा। बचाव हो गया। अगर मैं गया होता यहाँ से उस तरफ तो इसने भाई पागल हो जाना था, डीजल सारा नीचे गिर जाना था। जब किसी भी मेन रोड से नीचे कोई लोड लगाने के लिए जाना होता है ना, तब एक ही चीज़ की टेंशन होती है कि वहाँ पे डीजल आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी अपनी तरफ से मैंने न्यू लस्कर से टैंकियाँ फुल करा के जानी है। आगे मेरे को एक शहर में नज़र आ रहा है कि यहाँ वहाँ पे एसओ का पंप है, तो अभी मालूम पड़ेगा जाके, क्योंकि जाने के टाइम में हमको लोडेड जाना है, लेकिन लोड अपने पास ज़्यादा है। यहाँ से है 801, 801, 1600 से 800, 2400
2400 किलोमीटर है, यहाँ से अप डाउन करेंगे अगर वापस। लेकिन उससे पहले न्यू लश्कर में रुक के पेट्रोल पास से टंकी फुल करा के फिर आगे जाएंगे। फिर रास्ते में अगर कहीं भी पेट्रोल पास दिखा, बस उसी टाइम ही वहाँ से डीजल डाल लेना है भाई, वो उसी टाइम ही। अल भरावा नुकसान होने वाला था, बचाव हो गया। क्या सुहाना मौसम हुआ पड़ा है, सुहाना। और एक तरफ लेक है और एक तरफ है 70 की स्पीड और 50 की स्पीड। छोटा सा मूस और उसका बच्चा था, देखा। न्यू लश्कर नाम का जो टाउन आता है ना, न्यू लश्कर से पहले जब डाउन आती है और डाउन के ऊपर 65 नंबर हाईवे का ये बोर्ड आया, तो मैंने यहाँ से 65 नंबर हाईवे लिया है। वो चढ़ाई आती है सामने और हम फाउंटेन टायर को हम ऐसे ही देखते रहे बहुत सालों से, लेकिन आज मैंने पहली बार ऐसे रोड से नीचे राइट लिया है और यहाँ से 65 लेके ईस्ट की तरफ जाना है। ईस्ट की तरफ मिलेगा कोई, कैसा मिलेगा कैसा नहीं, ये तो अभी जाके मालूम पड़ेगा। लेके बाबा जी का नाम, आज पहली बार रोड डाइवर्ट किया है इस तरफ को। देखते हैं कैसा रोड मिलता है, कैसे नज़ारे होते हैं। आज पहली बार न्यू लश्कर जो टाउन है उसके बीच में से जाएंगे। ये सारा न्यू लश्कर टाउन वाले जो घर बार सारे ये यहाँ पे प्रोविंस ऑफ क्यूबेक। जैसे ही हमने यहाँ से राइट मारना है ना, ये हमारे पास में हाईवे 11 चल रहा है, लेकिन इस तरफ अंतर कभी हम आए ही नहीं, क्योंकि हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी डिलीवरी करने की। तो आज लोड मिल रहा था तो मैंने भी ऊपर वाले का नाम लेके हाँ बोल दिया। मैं बोला चलो आज इस तरफ का भी सवाल देख के आते हैं क्या होता है। लेकिन हमने यहाँ पे नहीं रुकना। पहली 2 डिलीवरियाँ होगी अपने पास में। पहली डिलीवरी होगी अपनी यहाँ से 500 किलोमीटर और दूसरी डिलीवरी होगी वहाँ से आगे 600 किलोमीटर। तो मीन्स की पूरा रिमोट एरिया में जाएंगे अंदर। बस ज्यादा हिले ना आए, ज्यादा हिले आएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होता है। यहाँ से 23 किलोमीटर आगे क्यूबेक का बॉर्डर शुरू हो जाएगा, क्यूबेक स्टेट शुरू हो जाएगी और हम इस टाइम 65 हाईवे के ऊपर है, जो न्यू लश्कर से 65 निकलता है क्यूबेक की तरफ। साथ में बंदा बिठा के लोडर ट्रेलर डाल के जब हम रेस करते हैं ना तो आरपीएम डाउन होता है। उस टाइम के ऊपर किसी चीज की खड़कने की आवाज आती है, वो है। और वो मेरे हाथ लगने से मालूम नहीं पड़ रहा, दूसरे बंदे की हेल्प चाहिए अपने को। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा। बस कोई ऐसी कर्व है नीचे और 6% की ग्रेड है, तो आपको ऊपर से कंट्रोल करना पड़ेगा अपने ट्रक के ऊपर, नहीं तो आपका ट्रक एक बार छूट गया तो फिर ब्रेकों में धुआं ही निकलेगा, धुआं ही। आज तो वही काम होगा, चढ़ की चढ़ाइयाँ जय बाबे दी, उतर की चढ़ाइयाँ जय बाबे दी, सारे बोलो जय बाबे दी। ये ट्रिप आपको क्यूबेक के जंगलों में घुमाएगा पूरा। मेरे को भी, मैं भी पहली बार ही आया हूँ इस रोड के ऊपर। 80 किलोमीटर का हाईवे है और शोल्डर इतना ही है, व्हाइट लाइन खत्म, रोड भी खत्म। काम स्टार्ट हो चुका है। 8% की ग्रेड का बोर्ड आया यहाँ पे कि 8% की ग्रेड है, मीन्स की डाउन जाएगा, डाउन 8% डाउन। एकदम से डाउन गिरना, देखना यहाँ से हमने ये देखो कहाँ तक डाउन गई। लेकिन एक रास्ता सीधा सीधा है, अगर रास्ता सीधा है तो एक्सीलेटर से पैर उठा लो, अगर आपको दूर तक दिखाई दे रहा है फिर कोई मसला नहीं है। फिर कितना भागेगा देख लेते हैं, 100 के पास जाएगा और फिर रुक जाएगा। 96 बस सही है, इतना ही रहेगा। आ गया अभी वापस। दिन दिन में देखो कितना कुछ दिखाई देता है ना। रात को मतलब क्या हिसाब हो जाना ड्राइवर का, जैसे घोड़े को खोपे लगे होते ना दोनों आंखों के, इस तरफ, और वो सीधा ही देखता है, लेफ्ट राइट नहीं देख सकता। वही हमारा हाल होता है। जहाँ पे हमारी लाइटें गिरेंगी बस हमको उतना ही दिखाई देना है। आसपास में क्या मूवमेंट हो रही है, क्या निकल के जा रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। ये तो हाईवे 11 से भी थोड़ा छोटा ही लग रहा है मेरे को। ऐसे वाले हाईवे के ऊपर जब भी आपने जाना है पहली बार ना, कोशिश करो कि दिन की ड्राइव होनी चाहिए। रात की ड्राइव आपको सूट नहीं करेगी। रात को गलती होने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जानवर जो होता है ना उसका मालूम नहीं होता। अभी यहाँ पे तो पैलियाँ हैं, खेत है, लेकिन आगे जाके मालूम नहीं क्या माहौल बनेगा। अगर ऐसे ही पैलियाँ रही फिर तो बड़ा मजा आता रहेगा, फिर तो ट्रिप भी पूरा बढ़िया हो जाना है मेरे को लगता है। ये मोटरसाइकिल देखो कहाँ पे लगाया हुआ है,
कोई है इसको टेंशन, कोई चोरी करके नहीं लेके जाएगा यहाँ से। और ये लो सतलुज दरिया आ गया पंजाब वाला। ओए ये तो छोटा है यार, वो बहुत बड़ा है। सारा बोर्ड जो है वो सब फ्रेंच हो जाएगी। ये देखो बॉन्जोर क्यूबक 105 पे जाएगा कहाँ पे ट्रक, मेरे को लगता नहीं यहाँ पे 105 पे जाएगा ट्रक। वेस्ट झोटे आउंदे अगों, वेस्ट झोटे आउंदे अगों, की हाल जे? पेट्रोल पास ढूंढ लिया है मैंने रास्ते में, और ऊपर देखो कितने कैमरे लगे हैं, सब कैमरे वाले अपने को देख रहे हैं। और साथ में कितने बंदों की पार्किंग अपने को मिल गई, टेंशन फ्री हो गई, दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैं सोच रहा था कि सुनसान एरिया होगा, लेकिन मैं 250 किलोमीटर आ गया हूँ 101 और 117 लेके। ये ट्रांस कनेडा हाईवे तो मिस की है तो सिंगल ही है, जैसे 11-17 सिंगल है, लेकिन रौनक इस पे पूरी है। और ये सारा अभी पेट्रोल पास वाला प्लाजा है, अभी इस पे मालूम नहीं क्या क्या सिस्टम है, लेकिन रास्ते में 3-4 पेट्रोल पास आए, ये भी उनमें से एक है। तो मैं ना वहाँ पे सील लगाना ही भूल गया था। अभी रात को यहाँ पे सोना है ना, तो मैं सील लगा रहा हूँ रात को। इसकी फ़ोटो भी खींच लेते हैं। हर 30-40 किलोमीटर के बाद मैं टाउन आया, और अभी मैं वाल्डो आ रहा हूँ, VALDOR ऐसे करके एक टाउन है, मैं वहाँ पे हूँ। पोस्ट टेप कर लेते हैं एक बार, तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि अपना टायर टप्पा कैसा है। सुबह फिर थोड़ी सी टेंशन कम होती है, गियर मारेंगे चल पड़ेंगे, हथौड़ी लेके आनी पड़ेगी, है ना। यहाँ तक तो है बहुत स्वाद, लेकिन सुबह अपने पास ना अभी 300 किलोमीटर का सफ़र है पहली ड्रॉप के ऊपर, और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे ना तो ट्रांस कनेडा हाईवे और ना ही इसके बाद में कोई टाउन आएगा। मीन्स कि हम अभी सुबह मेन रोड से अलग हो जाएंगे। जब पत्ते वाला हाईवे होता है ना कनेडा में, उसके ऊपर रौनक होती है। ये पत्ते वाला हाईवे था सारा, लेकिन अभी पत्ते वाला हाईवे हमसे अलग होकर दूसरी तरफ चला जाएगा और हमने दूसरी तरफ चले जाना है। तो मालूम नहीं सुबह क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। नीचे जगह देख लेता हूँ अभी मैं सोने से पहले कि हाँ जगह सही है सारी। लीकिंग शीकिंग एक बार चेक कर लेते हैं कि सारा कुछ ठीक है। देख लो, अभी कल ही निकल के गया है जब मैंने डीजल बाहर गिराया, फिर भी पंगे लेने से हट नहीं रहा मैं। जब ऐसे वाले रास्तों में जाना होता है ना, तब प्लान करना पड़ता है। जैसे 300 किलोमीटर यहाँ से लोकेशन है, फिर 300 वापस भी आना है, और 300 यहाँ से जाना है, फिर दूसरी ड्रॉप के ऊपर जाने के लिए 600-700 किलोमीटर का सफर है। तैयार हो गया, और अगर यहाँ तक आते थे 1700-1800 किलोमीटर वापस हो गया, तो फिर रास्ता बंद, कहीं रात को रुकना पड़ गया, एसी चलाना पड़ गया, ट्रक स्टार्ट रखना पड़ गया। तो इसलिए जो 100-150 लीटर यहाँ से आएगा एक बार डाल के टेंशन फ्री होकर निकलेंगे। फिर अपने को टेंशन तो नहीं है ना यहाँ तक आने के लिए। ये बड़ा जरूरी होता है। आप मेन रोड से इधर उधर हो जाते हो, तब आपको डिसाइड करना होता है। मेरे को लगता है कि 100% श्योर हूँ कि इसके आगे कोई भी पेट्रोल पास नहीं आएगा। ये लास्ट वाला टाउन है। 137 लीटर आया बस, और टैंकी होगी फुल। यहाँ पे डीजल महंगा तो होगा, लेकिन मजबूरी हो जाती है बंदे की। अभी ये तो बंद ही पड़ा हुआ है, ये 8 बजे खुलेगा। इनके संडे मंडे देखो क्यूबक में फ्रेंच में कैसे होते, LUNMAR सैम डिम, मालूम नहीं क्या हिसाब। अभी संडे से शुरू हो रहा है ये मालूम नहीं, मंडे से शुरू हो रहा है ये मालूम नहीं। तो ये तो अभी 8 बजे खुलेगा। यहाँ पे चांस हैं अपने 8 नंबर, वहाँ से 8 नंबर लगा के आना पड़ेगा, है ना। 8 नंबर पंप नंबर 8। ओ जी ओए, 8 नंबर खुल गया होगा तो वॉशरूम मिल जाएगा यहाँ पे। फिर अपने को सारा दिन कोई टेंशन नहीं, डीजल मिल गया, वॉशरूम मिल गया, आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे। वैसे मैंने दूध भी पकड़ना था, लेकिन दुकान ही नहीं खुली। खोल चुका कि नहीं? ओ जी ओए, खुश की ही ओए। अच्छा प्लाजा भी है, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है। कहाँ है वॉशरूम? शावर एंड टॉयलेट। वाह, अच्छा बड़ा गुजारा हो जाएगा यहाँ पे। दूध चाहिए था यार, दूध है ही नहीं इनके पास में। ये मालूम नहीं क्या पड़ा हुआ है। ये कॉफ़ी बनाने वाला सामान रखा हुआ है इन्होंने। सारी फ्रिजें रखी हुई है, लेकिन इनको इंग्लिश नहीं आती, बल्कि इंग्लिश आती भी है तो बोलते नहीं ये। आई नीड मिल्क। मिल्क
मिल्क? I don't have, sorry. ओके ओके मैन, नो वरीज। ये जो स्क्वीजी है ना, ये रात को अंदर रख के गया था वो, अभी सुबह रख के गया यहाँ पे बाहर। मेरे जैसे बंदे आते होंगे, उठा के ट्रक में रख लेते होंगे, इन्होंने अंदर रखना शुरू कर दिया। यहाँ से लेना है रूट 113। ये कार वाले ने वैसे काफी पीछे किया है मेरे लिए। अभी ये रूट मालूम नहीं कैसा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, ये सारा कुछ डिसाइड करेगा पहली ड्रॉप के ऊपर जाने के लिए। ओए मेरे पीछे एक बड़ा वाला ट्रक भी आ गया। ये तो सिंगल सा रोड ही है ना, हाँ, लेकिन है पक्का। पूरे 67 किलोमीटर के बाद में ना ये वाला टाउन आया है, और ये वाले टाउन में आके ऐसे राइटें लेफ्टें मारनी पड़ रही टाउन के अंदर से। और कार वालों ने देखो कहाँ पे खड़ा कर दिया, बड़े समझदार बंदे हैं कई। ये देखो वहां से राइट मारा, अभी यहाँ से लेफ्ट मारेंगे। और ट्रक देखो यहाँ पे वेस्टर्न स्टार हैवी स्पेक 4 एक्सल लेके घूम रहा है। टाउन का नाम नहीं मालूम पड़ता यार, बड़े फ्रेंच नाम होते, अंडे बड़े औखे होते। अभी यहाँ से 113, फिर आगे जाके फिर राइट मारनी है। कितनी चढ़ाई है, इसके नीचे क्या है? रेलवे का ब्रिज है। छोटे से टाउन में आए, वहां से राइट लेफ्ट कर करके फिर आगे फिर हाईवे के ऊपर। वैसे यहाँ तक तो रास्ता बड़ा सही था, बल्कि कोई दिक्कत नहीं आ रही। 3 अक्षरों वाले वहां से शुरू होते हैं, सारे हाईवे जो है वो बढ़िया ही है। लाइटें देखो लगाई हुई पिक्के के ऊपर 4। ये क्यूबिक वाले ना, इनके ट्रक भी देखने वाले ही होते हैं, बड़े शौकीन बंदे हैं ये क्यूबिक वाले। कितना लंबा ट्राला है यार, ई ट्रेन लेके निकला है भाई, कहाँ अंदर से लोड करके निकला है लंबर। आ गया वही टाइम, जंगल आ गया भाई, जंगल। अभी दोनों तरफ जंगल है, नेटवर्क के बाहर हो गए हम, लेकिन ट्रैफिक आगे से आ रही है। रोड पक्का है, लेकिन देखो यहाँ वाइट लैंड भी कहीं कहीं से टूटी हुई है। और दोनों तरफ ये जो झाड़ियाँ, अगर हम रात को ट्रैवल करते, अपने पास लॉग बुक थी 1-1.5 घंटे की, लेकिन अगर रात को ट्रैवल करते तो रिस्की हो जाता ना काम ना। अपने को मालूम था कैसा माहौल है, अभी देखो वाकई रात को चलने वाला माहौल है नहीं है। यहाँ से कहीं से भी जानवर आगे तो आपके ट्रक की तहस नहस हो जाएगी। और कर्वें बहुत आ रही है, राइट को लेफ्ट को, लेकिन ऐसी टामी टल्ली को कार आती है, को ट्रक आता है, दिल लगा रहता है बंदे का। देखो कैसे झोटे आते हैं आगे से, काले रंग का वेस्टर्न स्टार है, हैवी स्पेक। अभी आजकल गोरों की पहली पसंद वेस्टर्न स्टार बना हुआ है हैवी स्पेक के मामले में। अगर किसी ने लॉक का काम करना है, किसी ने चिप का काम करना है, चिप होती है वो बूरा, लकड़ी का बूरा, अगर उसका काम करना है किसी भी हैवी हॉल के लिए, अभी पहली पसंद जो है वो वेस्टर्न स्टार ही दिखेगा आपको। वेस्टर्न स्टार होगी लोगों की पसंद। इसका रीजन होगा, एक तो ट्रक बहुत अंदर से खुला डुला है, उसका कैबिन बहुत बड़ा है, और दूसरा एक उसकी माइलेज जो है वो मेरे को लगता है कि वो पीटर बैट से अच्छी है। ये कहाँ पे खड़े हैं दोनों जने सलाह करके, आपस में बातें कर रहे हैं और स्पीड का ट्रैप लगा के बैठे हुए इस रोड के ऊपर। क्या बात है यार, वैसे आस नहीं थी कि यहाँ पे पुलिस वाले होंगे इस रोड के ऊपर, लेकिन है यार, 2 बंदे हैं, दोनों आपस में गाड़ियां लगा के बात कर रहे हैं। नेटवर्क आ नहीं रहा, फिर भी यहाँ पे खड़े हैं, इतनी दूर आगे देखो। बहुत बड़ा लोड लेके जा रहा है भैया जी। आगे भी पायलट गाड़ी, पीछे भी पायलट गाड़ी। चल 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 चल, ऐसे वाली डिब्बे आनी शुरू हो गई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। रोड स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन चढ़ जाओ नीचे उतर जाओ, चढ़ जाओ नीचे उतर जाओ। वो टीसी के ऊपर एक ट्रक चढ़ रहा है, ये देखो फिर से एक डिप आएगी तगड़े वाली। ये देखो नीचे गए, ऊपर चढ़े ऐसे। ओ
रोलर कोस्टर बन गया, रोलर कोस्टर। ये डाउन देखो कैसी हो है, कैसी डाउन है, वो कहाँ गया ट्रक देखो नीचे, और ऊपर से कंस्ट्रक्शन चलाई हुई है इन्होंने। सारा रोड सही था, यहाँ पे आके क्या हो गया, एकदम से रोड खराब हो गया सारा ही। ये गया लकड़ा लेने के लिए, लॉग ट्रक। ये क्या किया हुआ है, सारा रोड ही पाटा हुआ है। शुक्र है वॉल्वो दिखाई दिया, वॉल्वो। लिगन डैरेट, सही है, लिगन डैरेट बोलते हैं कि स्टॉप लाइन। मेरे को देखो कितनी फ्रेंच आती है, लिगन डैरेट। और 60 मिनट पड़े हुए हैं। ये 60 मिनट देख के आपको याद नहीं आ गई, जब हम न्यू फाउंडलैंड लैब्राडोर जा रहे थे तो वहां पे रास्ते में क्यूबक वाला एरिया आता था। यार मैंने तो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया यार, मैंने तो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया इनका। मालूम नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा इसका। पक्का रोड हो ना, थोड़ा टूटा भी हो, सफर निकलता रहता है, जैसे बंदा 70-80 पे चलता रहता है। लेकिन जब रोड ग्रेवल वाला हो जाता है ना, तब टाइम किलोमीटर नहीं निकलते। और आरजीएन लेके आया भाई, इसने कर दिया फोल्डर, ग्रेडर लेके आया, ग्रेडर। अभी ये यहाँ पे ग्रेडर उतारेगा है वो भाई, इसको अंदर कर। वो ये क्या निकाला हुआ बाहर तूने? अलास्का चले जाओ, क्यूबक चले जाओ, न्यू फाउंडलैंड चले जाओ, ये वाले जंगले आपको पहचान में आ ही जाएंगे कि हाँ ये वाले जंगले हर जगह में होते हैं। और नीचे रिवर चल रहा है बहुत तेज, पानी का लेवल बहुत चढ़ा हुआ है। तो ये हम पहुंच गए भाई वासानिपी, WASWANIPI, वासानिपी क्यूबक, जो पड़ता है न्यू लश्कर से पूरे 550 किलोमीटर नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ पे कहीं अपनी पुलिस वाले की गाड़ियां भी खड़ी हैं। ठाणा भी आ गया, ठाणा। ये आ गया टाउन का नाम, वासानिपी चिकन पिज्जा। ये पंप एसओ का शो हो रहा है, लेकिन पंप है यहाँ पे मैकेवन का। और यहाँ पे कहीं अपनी लोकेशन है, इनको पूछ के आना पड़ेगा कहाँ से जाना है। तो रेडी बैठे हुए उतारने के लिए। मसला बन गया है, बोलते हैं हमारे पास बंदे नहीं है, हाथ से डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं कि तुमको अंदर जाना पड़ेगा, लंबर जैक से डिलीवरी बाहर निकालनी पड़ेगी, हैंड जैक से। हम अंदर नहीं जाएंगे, अभी करना पड़ेगा। एक आए ऐसी जगह पे, मना भी नहीं कर सकते, नहीं तो यहाँ पे बैठे रहेंगे। बोलते हैं कि घुमा के लेके आ ट्रक को आगे से। कहाँ फंसा दिए हैं यार, बोलते हैं घुमा के लेके आओ। अभी पिक्का तो वो मूव ही नहीं होता है इनका, तो कैसे मूव होंगे? जहाँ ये गाड़ी मूव करें या वो पिक्का मूव करें। ले दे के ये एक पंप ही पंप है यहाँ पे, वो भी एसओ शो करता है, लेकिन है कोई कंपनी और। वो सीधा ही आके बोला मेरे को भाई, बोलता कि अगर हमारे पास आना है अपना हैंड जैक लेके आओ। यहाँ पे हमेशा ट्रक वाले हैंड जैक लेके आते हैं। और दूसरी ऑप्शन उसने पता क्या दी है कि यहाँ पे अंदर ना हैंड जैक डाल देंगे, बंदे दे पुत्ता वांगू अंदर जा, तो कल्ला कल्ला पैदल ले गया। ये घुमा के खड़ा कर दिया ट्रक मैंने यहाँ पे पंप के सामने। और सारे यहाँ फर्स्ट नेशन वाले बंदे हैं। और ये इनकी बिल्डिंग है नीले वाली। और ये अभी तक तो आया नहीं कोई भी।
What does he want you to do? Just to pick up the top pallet underneath or the bottom one? The bottom one. Okay, I think you could slide my torch right underneath there and grab the first. Oh, wait a minute. Okay, let's try it. You can come. Yeah. I'm gonna try it first. I'll give you a signal. That should be very good for me. I will move it. Okay, hold Yeah. on. अगर इसकी फॉर्क सीधी आ गई ना यहाँ पे स्वाद आ जाएगा भाई। बस टेलर के अंदर ना शेक कर दे कहीं। चल चक दे घड़े तो कोला 1 टन है। ये लो भाई, खींच ली है बंदे ने, स्वाद आ गया भाई। मेरे को लगता है कि आगे वाले मेरे को लेके आने पड़ेंगे, पीछे वाले 3-4 ये ले जाएगा अपने आप ही। ओए जी ओए, ये बहुत भारी है भाई, 1 टन का एक है, इसके ऊपर बहुत मुश्किल से काम बनेगा ये। अगर ये 5 भी ले गया ना, सिरा लग जाएगा। 10 हैं इसके, 5 तो फिर मैं मुश्किल से खींच खूंच के लेके आऊँगा। गर्मी बहुत है यहाँ पे आज, 30-32 डिग्री टेम्परेचर इस इलाके में। सही है, नज़ारा ले आता उस्ताद। खून पसीने की मेहनत रंग लाई है उसने, अपने आप ही बोल दिया कि भाई गर्मी बहुत है, मैं ट्राई करता हूँ, 3-4 मैं खुद लेके आऊँ तो अच्छा है। ये देखो, ये सिस्टम है इनका। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती ना किसी शहर की, तो ये टाउन की ना वासानेपी की म्यूनसिपल गैरेज पब्लिक वर्क्स है, और ऊपर लिखा हुआ द क्री फर्स्ट नेशन ऑफ वासानेपी, ये उनका ऑफिस है सारा। ये उनकी बिल्डिंग है। मीन्स अभी तो ये छुट्टी करके भाग भी गए। पूरे 12 बजे ना यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, पूरे 12 बजे। जिनका लंच टाइम हो गया मालूम नहीं क्या हो गया, सब तितर हो गए भाई, कोई भी नहीं इसके सिवा। मेड इन इजराइल से बन के आया ये, और है ये मैग्नीशियम क्लोराइड फ्लेक्स। सर्च करके देखूंगा कि ये होते क्या है। मैग्नीशियम क्लोराइड फ्लेक्स 1 टन का एक बोरा, और पाउडर के जैसा है इसमें। अच्छा, ये तो नमक लगता है मेरे को, वो जो रोड के ऊपर डालते हैं, वो इनका स्टॉक आया होगा। वो जींदा रहे, वो गोरिया जींदा रहे, स्वाद ले आता बंदे ने। नहीं तो ये सारा काम आपके भाई ने ऐसे कर रहा होगा। ऐसे ही पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी है टेलर के अंदर। उसकी होगी कैपेसिटी ख़त्म, अभी उसके जो ब्लेड हैं वो अंदर नहीं जा रहे। मैं इसको ना थोड़ा पास में करके देता हूँ। ये भी अच्छा हो गया, देखो अपने आप ही आ रहा है भाई। हेल्प हो जाएगी उसकी, फ़ायदा हो जाएगा। ये ना 1 टन वजन है, जैसे ही आपने उठा दिया पीछे की तरफ निमान है, भागता है पूरा। चल चाकला, देखा ये अपने आप भागना शुरू हो गया। और रुक जा, दस बोरे इनके थे, ये भी दे दिया। अभी इनका लैंडिंग जैक, हैंड जैक इनको वापस करेंगे। चल आजा भाई टीटू। पूरी मार्केट में दूध ही नहीं है। आई थिंक नॉट। हाँ, I know. इट्स वेरी हार्ड। ओह मैम, और देखो इनके बाहर ये वाली जाली लगी हुई है। मेरा प्लान था यादगार बन जाएगी, यहाँ से दूध की बोतल उठाएंगे, लेकिन दूध तो अंदर है ही नहीं, जूस ही जूस है सारे, और जूस भी दूसरे ही हैं। तो हमको चाहिए अकेला दूध, तो रास्ते में कहीं से उठाना पड़ेगा। रास्ते में 1-2 टाउन पे आए थे, अभी अंदर भी हैं इसके। ये देखो वासासिपी, ये नॉर्थ वाले बंदे हैं भाई। असली कनाडा जो है वो इन लोगों का है। जो लोग आपको दिखे ना इस वीडियो में यहाँ पे, और जो आगे भी दिखेंगे, असल में ये धरती सारी इनकी है, फर्स्ट नेशंस। यार कहाँ पे गया वो मेरा सामान, कहाँ पे गया वो? ये
ये बहुत टाइम से इसको निकाला नहीं था कभी, लेकिन अभी मैं इसको अपने पास में रखने वाला हूँ यहाँ पे। वैसे तो ना इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए रख रहा हूँ कि रास्ते में कोई जानवर हो जाता है। हर एक कम्युनिटी में ना 2 नंबर के बंदे होते ही होते हैं। हमारी कम्युनिटी में नहीं है, कौन सी कम्युनिटी में 2 नंबर के बंदे नहीं है? हर एक कम्युनिटी में। तो इनकी कम्युनिटी में बहुत ऐसे बंदे जो 2 नंबर वाले बंदे, नशे पत्ते वाले बंदे होते हैं। सारे बंदे बुरे नहीं होते, इसलिए मैं अपने पास में यहाँ पे निकाल के रखने वाला हूँ। जैसे हम अलास्का में रखते थे ना, वैसे ही ऐसे ही रखेंगे पास में 2 दिन के लिए। वासा निपी सर्च एंड रेस्क्यू। ऐसे वाली जगहों में आगे ना रोड कैसे देखता हूँ मैं, मेरा तरीका है। बाकी हर एक बंदे को ज़्यादा नॉलेज है, अपने अपने हिसाब चलता है। ये देखो, ये 113 है ना, ये 113 शो रहा है ना, ये तो मेन रोड हो गया ना, इसकी अपने को कोई टेंशन नहीं है। अपने को टेंशन है जो 113 से ना ये रोड राइट साइड को कट हो रहा है। ये कट हो गया, ये इस पर चढ़ गया जाके, है ना, इस पर चढ़ गया। जब मैं इसको जूम करता हूँ ना तो इस पर ये पानी वाला ब्रिज आ गया, ये वाला, ठीक है। अभी ये पानी वाला ब्रिज है, इसको देखना पड़ेगा कि ये है सिंगल रोड, इसके नंबर कोई नहीं है। इसको कैसे निकालेंगे? एग्जिट करूँगा। भाई कहाँ चला गया तुम? ये देखो, ये जो बड़े हाईवे है ना, इस पे हम खड़े हैं, ये फिर भी बड़ा हाईवे दिख रहा है। अभी यहाँ से एक हाईवे इस तरफ को निकल रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि वो कोई मेन हाईवे नहीं है, तो वो स्कैम है। स्कैम मीन्स कि वो उसमें कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगी पक्का ड्राइवर के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। ये देखो, ये नाम है उसका, कैमड्यू मोलिन, ठीक है। पहले सबसे पहले यहाँ पे पिन ड्रॉप की, अभी उसकी फ़ोटो आएगी रोड की, देख लो रोड, ठीक है, दिखाई दिया, सिंगल है, ठीक है। अभी इसका आगे वाला पार्ट देखना है हमें। ये समझने वाली चीज़ है। देखो, आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको सबको मालूम पड़ेगा। ये देखो, ये ग्रीन है और बड़ा रोड है, दिखाई दे रहा है। ये छोटा रोड है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना। अभी थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा आगे गए, उसी रोड के ऊपर ये पानी वाला ब्रिज आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने पिन ड्रॉप कर दी, ये लो, ये पिन ड्रॉप किया। अभी देखना जो नज़ारा आपके सामने आएगा वो देखना। अभी देख रहे हो ये क्या चीज़ है? ये लकड़ का ब्रिज है, ठीक है। इसके ऊपर पक्का कैपेसिटी होगी इसकी कि ये कितना टन वजन लेके आर पार जा सकता है। और ये कार का बोनट दिख रहा है आपको ना, तो कार का बोनट इसमें पूरा आ रहा है, तो ट्रक पूरा खै के निकलेगा। और इसके आसपास में ये पानी वाली लेक है, तो यहाँ पे पक्का कोई ना कोई ट्रक के लिए रिस्ट्रिक्शन होगी। अभी हम थोड़ी देर के बाद में जाएंगे आगे जाके फिर हमने देखना है कि वो रोड के बाहर क्या साइन लगे हुए हैं। अगर कहीं पे कोई ट्रक की रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है तो फिर निकलेंगे राइट मार के, नहीं तो फिर अपने को पता कितना वाला डाल के जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 200 माइल मीन की 350 किलोमीटर का वाला ऊपर से डाल के जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर मेरी जो लॉग बुक है वो पहले खत्म हो जानी है। 3 घंटे तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास 9 घंटे हैं, तो मेरे को 900 किलोमीटर ही है। तो ऐसे वाले रोड के ऊपर 900 किलोमीटर 9 घंटों में कैसे निकलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओए होए, पीटर बेल्ट ने कैसे अपना सिर निकाला, देखा? पीटर बेल्ट जाएगा उस तरफ। जब भी नॉर्थ में आना होता है कोई ना कोई पंगा पड़ना ही होता है। अभी यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ, अभी मैंने यहाँ से राइड करनी, मेरा मैप बोल रहा है कि आगे से राइड कर ला, लेकिन आगे से राइड करने से पहले ये क्या साइन आ गया आगे, बोल रहा कि 15 टन से ज़्यादा कैपेसिटी 8 किलोमीटर के बाद में एक ब्रिज जाएगा। मैं भी आपको समझाता भी हूँ कि कैसे मालूम पड़ता है इन चीज़ों का। फिर मैंने गौर से मैप देखा, क्योंकि बोर्ड पढ़ने होते हैं। अगर मैंने यहाँ से राइड कर लिया 8 किलोमीटर के बाद में फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके ऊपर मैंने 15 टन से ज़्यादा वेट वाला ट्रक ट्रेलर चढ़ा दिया तो वो ब्रिज टूट सकता है। वो लकड़ का ब्रिज है। एक तो होते हैं रोड होते हैं, चलो आगे पीछे देख के हम निकल भी जाते हैं, लेकिन भाई ब्रिज है, नीचे से पानी चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिज कोलैप्स हो जाए इतने वजन से। मेरे पास वजन होगा 6 टन मेरे अंदर है, 6 टन ट्रेलर के अंदर है, और अपने पास 6 टन वो डाल के और 17-18 टन का तो अपना अकेला ट्रक और ट्रेलर ही है खाली, तो ये मसला बन जाएगा। अभी इसके कारण अपना पता कितना नुकसान हो गया। 15 टन की लिमिट के कारण अपने को यहाँ से 150 किलोमीटर और आगे, फिर 150 वापस इससे नहीं था। इसने पता क्या करना था, यहाँ से राइड मारना था, और एक रोड ये जा रहा है, एक रोड ये जा रहा है, दोनों रोडों को ये सेंटर में रोड ऐसे शॉर्टकट था। फिर ब्रिज ही पक्का कर दो यार, कितनी मौज हो जानी थी। और मच्छर तो ऐसा है ना कि यहाँ पे बैठ जाता है ना, तो मच्छर पता क्या बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरा खून पीना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे खींच के निकालना पड़ता है, तो उसकी क्या होता है उसमें, तो वो सारा ना क्रश हो जाता है अपने हाथों के नीचे। लेकिन कुदरत का नज़ारा बहुत आता है, हरियाली देख के स्वाद आता है। ये देखो, ये
बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बेचारी मर गई। ओए जागदी ओए, ओ जींदी ओए, जींदी ओए, जा चल जा, सट लग गई इनू, जा जीला अपनी ज़िंदगी, नन्ही सी जान है इसमें। यार लाइटें चल रही हैं, रोकना पड़ेगा एक बार ना, देखना पड़ेगा कहीं ट्रेन पास में तो नहीं है। ओए ओए, जानवर भी इतनी ज़्यादा बीप बीप बीप। अभी देखो कार वाला बोलता है सीधा जाओ, सही है, लेकिन यहाँ पे सीधा जाएं कैसे? 67 किलोमीटर से 5 टर्न। कहाँ पे ट्रक है? वो ऊपर 7% की ग्रेड है, 7। इतनी नींद आ रही है कि आंखें बंद हो रही है, खाना नहीं खा लिया था, चाय खाते जाके। पेट्रोल कनेडा का पंप है, पेट्रोल पास तो दिखाई नहीं दे रहा अभी। मेरा टायर दिखाई दे रहा है ट्रक का, अभी ये टायर देखो ट्रक का आगे वाला। बात हम देखना कितना घटिया जगह के ऊपर बना हुआ है, ऊपर से नीचे आना पड़ता है और यहाँ उतर के फिर वॉशरूम है। अभी जाके मेरे को चाय उठानी है। चलो 2% ही सही, ये कौन सा वनीला, ये मिल्क टू गो फ्रेश मिल्क। आज छोटिया तू नहीं कोई चाय कॉफ़ी पीनी? देख लो कितना अच्छा बंदा है ना, बोलता है कोई चाय कॉफ़ी नहीं, बस तू पी, कहता तेरे को देख के मेरा पेट भर जाना। वाह क्या शब्द बोले हैं ट्रक ने। हा। किलोमीटर कम होने के नाम ही नहीं ले रहे भाई। 640 अभी लेकिन ये भी दोनों की एक ही सलाह है, 640 तो 640 तो आज अपने साथ से मक्खी ओए मक्खी वो निकल जा बाहर, ओए इन्हें बड़ा तंग करना। ये सुस्ती पड़ रही थी, चाय लेके आया हूँ, थोड़ी चाय पीते हैं, थोड़ी ठंडी लग रही है। वाट ए बेकार कॉफी। ओए होए तू कितों आ गया? चल चाय अपनी बनाते हैं यार। कल अंकल जी मिले थे, अंकल जी ने चाय का नुस्खा बताया, दूध की बोतलें लेके आए 2, ऐसा ही मिला है दूध के बगैर भी हमारे ट्रक में गुजारा नहीं होता हमारा। क्या पता कहाँ पे ब्रेकें लग जानी है, चाय दूध अपने पास होना चाहिए कि नहीं। अंकल ने बताया, बोलता है कि जब जल्दी हो थोड़ी तो माइक्रोवेव ने चाय कल माइक्रोवेव की चाय बना के पिलाई थी अंकल ने, स्वाद तो बहुत आया था उसमें। आज माइक्रोवेव की चाय फिर बनाते हैं। अरे तो अपनी अभी बोल रही है कि लगा ला 3-4 दिन 5 दिन अभी, और कोई चक्कर नहीं। ये लो अंकल जी गई चाय, 3 मिनट पे लगाई है मैंने, कल 4 मिनट पे लगाई थी, वो उबल के बाहर आ गई थी। आज 3 पे रखेंगे, देखना अभी चाय बनेगी पूरी सिरे दी, जिसको बोलते हैं ना सिरा गल बात। 640 किलोमीटर है, जितना मर्जी भाग लें, आज की लॉग बुक वहाँ पे पहुँचेगी नहीं। और अपने पास में टोटल इतने घंटे की, अगर आज पहुँचे कल सुबह पहुँचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रुक के आना पड़ेगा भाई। गलत डिसीजन हो गया ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए था। इसकी इस तरफ आना है ना, तो अपने पास में आवर खुले होने चाहिए थे, क्योंकि आवर खुले होते तो आज पीछे रुक के भी कल सुबह खाली करके फिर वापस वाल डोर आ जाते। लेकिन अभी कल मैं वाल डोर आ ही नहीं सकता, मेरे पास में आवर ही नहीं है। देखते हैं क्या बनता है। सबसे आसान तरीका है ये, शहद डाला, दूध को गर्म किया, 2 पत्तियां इसमें डाल दी, इससे बढ़िया चाय कोई नहीं होगी, देखना। इस पे गाना बन सकता है, सारी दुनिया में वेखी आया इहदे वर्गी चाह लब्भी ना। हा गैसा। चलिए फिर करते हैं थोड़ा सफ़र और 700-800 से लबेड़े आज, 550 हुआ है। 500 माइल तो निकलनी चाहिए एक दिन में। वाहिगुरू सच्चे पातशाह। धूप शुरू हो गई है, ऐनकें लगाने दो आपके भाई को जरा। कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ। 10 मिनट की डिले होगी आगे 2.8 किलोमीटर के ऊपर। ये पेट्रो कनेडा का पंप है, लेकिन साथ में पेट्रो पास नहीं है। अभी हम 109 के ऊपर आ गए। ये 109 की कंडीशन है, मीन्स की ठीक ठाक सी है। और ये आगे लोडर ट्रेलर लगे हुए हैं, ये जा रहे हैं 80 पे, 80 है, 90, 80, 90, 80, 90। लेकिन इसमें मोड़ कोड़ ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें सीधा रोड ही नहीं आ रहा। ये देखो, अभी राइट को थे ना,
अभी देखना अभी आगे से लेफ्ट हो गया। और ये आरवी वाला भाई साहब बहुत टाइम का पीछे पड़ा हुआ था, इसने मेरे को ओवरटेक मारा है। अभी टेकटिकी लगा के बैठा हुआ है, किसी भी टाइम उसको भी ओवरटेक मारेगा ये। आया आगे से वेस्टर्न स्टार, ओ इंटरनेशनल, ओ मार गया बाजी बठिंडे वाला गबरू। ओ जांदी आरवी, ओ जांदी। ओए दूसरी आरवी वाला भी गया। ये दोनों भाई होंगे, फोन के ऊपर बात कर रहे होंगे, लेकिन फोन कैसे चलेगा? लेकिन यहाँ पे तो नेटवर्क नहीं आ रहा। रेडियो हम भी नहीं लगा के आए, यहाँ पे रेडियो चाहिए था ना। हो गया उसको भी ओवरटेक मार के। क्यों टेंशन लेते हो? आप अपना बेस्ट दे रहे हो ना, बस फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी ऊपर वाला कर रहा है ना वो सही कर रहा है। हमारा काम क्या है? हमने अपना बेस्ट देना है और चढ़ती कला में रहना है। बाकी उसको पूरा करना या नहीं करना वो ऊपर वाले के हाथ में। हो सकता है कि मेरा सही टाइम ही नहीं है आज, तो इसलिए ऊपर वाले ने उसको टाल दिया। जब मेरा सही टाइम आएगा ऊपर वाला मेरे को वही काम करके देगा, क्योंकि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन उसके ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, ब्लाइंड विश्वास। तगड़े हो, चढ़ती कला रहो यार, क्यों टेंशन लेते हो? मेरे साथ क्या नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, लेकिन हर एक चीज को फेस करना पड़ेगा जिंदगी में। अगर इंसान जो होता है ना, अगर घर का एक आदमी अगर हिम्मत छोड़ देता है ना, सारे घर की हिम्मत टूट जाएगी। तो इसलिए चढ़ती कला में रहा करो यार, कोई चक्कर नहीं है, सब ठीक करेगा ऊपर वाला। भरोसा रखो उस पर, लेकिन मेहनत मत छोड़ना। ऐसा नहीं कि केला भरोसा, वो ऊपर वाले ने बोला हुआ है मेहनत तेरी रहमत मेरी। तो उसका मतलब कि मेहनत मेरी रहमत तेरी। मैं मेहनत करता रहूंगा, तेरी रहमत होगी। नज़ारे लो यार, क्यूब के नज़ारे लो। बीच बीच में ऐसे अलास्का वाली फीलिंग भी देते हैं, यूकॉन वाली। ये देखो, जब मैं पहली बार यूकॉन गया था ना, डॉसन सिटी गया था, तब उधर रास्ते में मेरे को ऐसे वाले पैच बहुत आए थे। ये दोनों ट्रेलर लोडेड है, लोडेड होने के चक्कर में ये बहुत स्लो जा रहे हैं। इनके पास में लॉग बुक के आवर भी बहुत होंगे, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब एक हफ्ता हो जाता है ना हमको घर से निकले हुए, तब हमारे आवरों की शॉर्टेज शुरू हो जाती है। की हो गया प्रधान जी? वॉशरूम आ गया इसको। दोनों सलाह से ही मुड़ रहे हैं, दोनों सलाह से ही रुक रहे हैं। वो भी रुक गया और वो भी रुक गया, दोनों ही रुक गए। चलो कोई नहीं, खाना वाना खा के आ जाओ, आराम से आ जाओ, कोई चक्कर नहीं है ना। दोनों सलाह से ही रुके हैं, सलाह से ही जा रहे हैं। जैसे ही मैंने माटागामी क्रॉस किया, ये क्या आ गया भाई? स्टॉप साइन है यहाँ पे, बिल्ली डायमंड हाईवे स्टॉप साइन है। कोई अंदर बंदा? Hello, where are you going? आई एम गोइंग टू ईस्टमेन। And your name, please? जसकरण सिंह, Tell me, please. JASKARAN, Yes, and your last name? last name Singh, SINGH. Thank you. Have Or a this- nice day, sir. This road is good, like same paved. What? This road is paved all the way to Eastmain. Yes. Wait, 350 is paved. Okay, 350 is Yes, it's paved. okay. Okay, thank you very much. That's all right. और यहाँ पे ऐसे करवाना पड़ता है हिसाब किताब। और ये कैबिन बना हुआ है, इन्होंने मेरा नाम ले लिया। ये ट्रक वाला लगा के सोया हुआ है। रीज़न पता है क्या है? रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रूट आइसोल 375 किलोमीटर, मीन्स कि अभी इसके बाद में 375 किलोमीटर कुछ नहीं आना। और आएगा तो क्या आएगा? ये सामने देखो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या आएगा? मूस भाई साहब आएंगे, मूस भाई साहब। इन्होंने थोड़ा सा माहौल खतरनाक सा बना दिया ना। जो गेट लगा हुआ था वहाँ पे लिखा हुआ था 100 की स्पीड है और 375 किलोमीटर कुछ नहीं आने वाला। उसका मतलब पता क्या था? जो मैंने डाला हुआ है, जैसे हमने इसी रोड से ना अंदर जाना है 100 किलोमीटर, और वो उसके लिए हमको 330 किलोमीटर 340 किलोमीटर यहाँ से सीधा जाना है, फिर लेफ्ट मार के ग्रेवल रोड है मेरे ख्याल में, या ग्रेवल या पक्का, ये जाके मालूम पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मेरे पास में लॉग बुक नहीं है आज की, तो मैंने मैसेज किया। जो आगे रिसीवर है ना, उसने मेरे को बोला कि भाई कोई स्टॉप नहीं मिलेगा तेरे को माटागामी के बाद में। माटागामी हम अभी पीछे छोड़ के आए, जहाँ पे हमने गेट पे एंट्री कराई ना अपनी। तो ये चीज़ थोड़ी सी ना यहाँ पे थोड़ी सी ड्रामनी होगी, क्योंकि उसने मेरा नाम लिख लिया, मेरा कंपनी का नाम लिख लिया कि ये ट्रक जो है यहाँ से एंटर कर गया है। दैट मीन्स कि ये 375 किलोमीटर कितना अकेला और कितना एकांत होगा, जहाँ पे कुछ नहीं आता, ना नेटवर्क आता है ना कुछ आता है। लेकिन मैंने हिम्मत पता क्यों की है? अभी 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से यहाँ पे सूरज है। अगर दिन में 1.5 घंटा
पे हम निकाल के 150 किलोमीटर हो गया, पीछे रह जाएगा अपना 200 किलोमीटर। तो 200 भी आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल लेंगे, ऊपर वाले का नाम लेंगे तो टिकाने लग जाएंगे। वो ट्रक स्टॉप है एक तरह का इस रोड के ऊपर। उसके बाद में मैटागामी और उसके बाद बीच में कुछ नहीं आता। 380 किलोमीटर का ये पैच है, कुछ नहीं आता बीच में, कोई ट्रक स्टॉप नहीं आता, कोई नेटवर्क नहीं आता, लेकिन बीच बीच में स्पॉट जरूर आते हैं। और आगे से ट्रक आ रहे हैं, ये एक फिर ट्रक आया आगे से, बीच बीच में मेरे को ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती मैंने जो इस हाईवे के ऊपर आने के टाइम में कर दी है, मेरे को रेडियो लगवाने का याद ही नहीं है कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये इतना अकेला हाईवे होगा इस तरफ में। तो वो अंदर से रेडियो में बात कर रही है, लेकिन मेरे पास रेडियो ही नहीं है। मैं बड़ा अपने आप में ना शर्मिंदा सा महसूस कर रहा हूँ कि क्या तुमने क्यों ऐसा किया ना, रेडियो लेके आना चाहिए था। रेडियो बहुत ज़रूरी चीज़ है इस वाले रोड के ऊपर आगे, ऐसे वाली जगहों के ऊपर आगे। एक तो मच्छर जो है ना ये बहुत तंग करता है रात को। और ये देखो अभी रोड के साथ में सिर्फ रोड ही रोड है, नीचे ग्रेवल तो है लेकिन नीचे गुंजाइश नहीं है जाने की। लेकिन इतना शुक्र है कि इतनी हिले हुले नहीं आ रही, अभी तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है। और अभी ये माइल मार्कर शुरू हुए, ये देखो ये है 22 माइल मार्कर। अगर आप ऐसे वाले हाईवे के ऊपर सुनसान पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको, अगर किसी को अपनी लोकेशन बतानी है किसी को भी, तो आपको माइल मार्कर के हिसाब से बतानी पड़ेगी कि मैं भाई इतने माइल मार्कर के पास में या इतने माइल मार्कर के बाद में ऐसे खड़ा हूँ। अभी यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है और अभी तो दिन भी है ना, जब तक दिन रहेगा तब तक टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जब रात हो गई तब टेंशन होनी है। मैं यहाँ पे पता क्यों खड़ा हूँ, ये आगे फिर सिग्नल आया और सिग्नल रेड है, अभी इसके ऊपर 150 मिनट चल रहे हैं। जब भी ऐसे वाली जगह पे उतरना है, एक टिप देता हूँ, आपके दोनों विंडो के लॉक खुले होने चाहिए। काले वाला दोस्त कहीं पे भी किधर भी आ जाएगा। वैसे तो क्यूबिक में बहुत कम है। और ये मच्छर है, वही जानलेवा मच्छर है। ये देखो ये अभी भी मिनट चल रहे हैं इसके, देखो ये हो गया अभी 82 सेकंड अभी भी पड़े हुए हैं। ये जो मच्छर है ना, ये आपके पीछे बहुत स्पीड से आएगा। जब आपने अपने ट्रक में घुसना है, ऐसे भाग के ऐसे फिर भी एक आध दाना मच्छर का आ ही गया। यार 3 मिनट की डिले तो नहीं चाहिए ना, 3 मिनट की डिले, 3 मिनट में 6 किलोमीटर खत्म हो जाने थे। चलो लेकिन कोई चक्कर नहीं। मौका मिला है, शीशा भी साफ कर लो, बाद में मौसम आगे ख़राब हो जाएगा। इसको पता करना है, मौसम इसकी अंधेरा हो जाएगा, इसको मारते रहना है ऐसे थोड़ा पानी। ये थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन अगर एक बार क्लीन हो गया ना, आपकी विजन सही हो जाएगी। क्योंकि अभी आगे अंधेरा होगा तो अंधेरे के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होगी। तो इसको थोड़ा ऐसे मारते रहो पानी, तो फिर धीरे धीरे ये आपके विंडशील्ड को साफ करना शुरू करेगा। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, अच्छी बड़ी ड्रोन भी उड़ गई और अभी भी दिन है, मीन्स कि 9:45 हो गए लोकल। और अपने को सफर रह गया। अगर ट्रक वाले मैप में देखोगे 270 अपनी लोकेशन है जहाँ पे हमने डिलीवरी करनी है, लेकिन 197 किलोमीटर वो है जहाँ पे आज रात का हमने स्टॉप लगाना है। अभी तक तो बाबा जी की कृपा है, सारा कुछ ठीक ही जा रहा है। वाशर फ्लूइड ऐसे डाला करो। वैसे मेरे से गलती होगी, मैंने वाशर फ्लूइड जो है ना वो दूसरा नहीं डाला, सर्फ वाला नहीं डाला, लेके आना चाहिए था एक आध कैनी ना, तो डाल लेना चाहिए। हरा रंग कैसा लगता है भाई ड्रोन शॉट में? हरा रंग कैसा लगता है ये बताओ, बढ़िया लगता है कि नहीं लगता? हरा रंग भाई दूर से दिखेगा, बाबा जी कृपा करें। और अभी भी इतना शुक्र है कि इस रोड के ऊपर ना एक चीज की बड़ी मौज है, वो पता क्या है? ट्रैफिक है, ट्रैफिक कोई ना कोई आगे से मिल रहा है। और एक और चीज से मैं अंदाजा लगाता होता हूँ रोड का, कि रोड के ऊपर ना जानवरों के लहू के निशान इतने ज्यादा है नहीं, मीन्स की बहुत बढ़िया रोड साफ सुथरा पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो पता क्या होता है, जब हम विस्कॉन्सिन में जाते हैं, हर आपको 2-4 किलोमीटर के बाद में कहीं ना कहीं लहू जो होता है ना, खून, वो पड़ा हुआ मिलता है जानवरों का, क्योंकि वहाँ पे जानवर रोड के ऊपर हिट बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे
उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा। सड़क बिल्कुल साफ है, टोआ टिब्बा भी कोई नहीं है। जैसे हम सुबह गए थे ना, वो लेके 113 लेके गए थे, 113 के ऊपर टोए टिब्बे बहुत है, लेकिन इस रोड के ऊपर उतना टोआ टिब्बा नहीं है। साफ सुथरा रोड है, शोल्डर नहीं है बस, और ट्रैफिक भी है और अच्छी खासी मतलब की रौनक है, इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा। बाकी अंधेरा होगा, जानवर का ख्याल रखो और चलते चलो, क्योंकि नेटवर्क आता है कभी कभी बीच बीच में। मेरे को पता कब पता लगता है नेटवर्क का, जब कोई ना कोई मैसेज की रिंग ट्यून लगती है तब मालूम पड़ता है कि हाँ किसी का मैसेज आ गया। कितना तेल और टेम्परेचर टाइम पता कितना हो गया बाहर लोकल 10:15 और रोशनी देखो कितनी है। ये हम नॉर्थ में है, नॉर्थ में आपको मालूम है दिन बहुत रात तक रहता है। आपको भी नजर आ रहा होगा ना स्क्रीन मेरे शीशे के ऊपर कितना ज्यादा मच्छर है, तो पूरी निगाह ना गाड़ के रखनी पड़ रही है, पूरी निगाह मतलब कि टिका के रखनी पड़ रही है, क्योंकि किसी भी मोड़ के ऊपर कोई भी जानवर का ख्याल रखना है मेन। क्योंकि रोड का मैंने यहाँ तक हिसाब लगा लिया, जहाँ पे भी कोई भी छोटा मोटा कोई भी टोआ आता है ना, तो उसके पहले ना बोर्ड लगा होता है, इसका मैंने इतना अंदाजा लगा लिया। लेकिन अभी सिर्फ जानवर का कोई अंदाजा नहीं, जानवर का कोई टाइम नहीं होता है, जानवर की कोई पक्की जगह नहीं होती। दिन को मैं क्या बोल रहा था आपको कि हमारा घोड़े को जैसे खोपे लगे होते ना, तो वैसा हिसाब हो जाता है। हमको उतना ही दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमारी लाइट पड़ रही है। अभी लेफ्ट और राइट में क्या है अभी कुछ नहीं मालूम पड़ रहा। लाइटें डिम कर लो, आगे से लाइटें आएंगी। अभी शीशे का हाल देखना आपको मालूम पड़ेगा, जब लाइटें पास आएंगी तो देखना मच्छर का देखना कैसा है। नॉर्दर्न लाइट ये देखो, लेकिन पीछे कोई नहीं है भाई, आपका भाई अकेला ही है। देखी सामने, ये देखो ना, कितनी खुशी होती ना बंदे को जब एक नई जगह पे नए इलाके में आके बंदा जहाँ पे अपने रात को सोने का प्लान किया या जहाँ पे आपकी डिलीवरी वहाँ पे जाना होता है। इतनी खुशी हुई ना मेरे को, ये वाला इंडिकेटर लगा के राइट साइड वाला, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये बहुत बड़ा स्टॉप है, ये है कैंप 381। यहाँ पे 381 किलोमीटर हो जाते हैं जिस हाईवे पे हमने एंट्री करवा के वो गेट के अंदर घुसे थे। ये लो, यहाँ से हमारा राइट स्पेशल 30 किलोमीटर मैं आगे आया हूँ, जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है सिर्फ रात को, जहाँ पे अच्छी नींद लेने के लिए एक सेफ प्लेस के ऊपर। और ये पिक्के वाला रात को भी ट्रैवल करेगा मेरे को लगता है। वो ट्रक देखो कितना कैम ट्रक है यार वेस्टर्न स्टार का, उसके उस तरफ भी वेस्टर्न स्टार ही लगा हुआ है। मुੱਲ मोड़ता है इन्होंने, मुੱਲ मोड़ता है, एक ही कंपनी के लगते हैं ना, एक ही कंपनी के लगते हैं। अभी इसका मालूम नहीं मेरे को पार्किंग के जहाँ इन्होंने लिखा हुआ कि किसी कंपनी का जो ट्रक है सामान लेके आया किसी का, वो यहाँ पे रुकेगा। लेकिन फिलहाल मैंने पार्क कर दिया। पीछे अपने कुछ भी नहीं है कि पीछे है, पीछे रोड है, नहीं 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 पीछे कुछ भी नहीं है। ओहो कितनी खुशी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सामने पंप है, ये देखो। इस हाईवे के बारे में कुछ चीज़ें जो मैं पीछे देख के आया हूँ आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए, अगर कोई बंदा आ रहा है तो। जहाँ पे हमने एंट्री कराई थी वहाँ पे 109 हाईवे खत्म हो जाता है, वहाँ से शुरू होता है बिली रूट डायमंड हाईवे। ये सारा जो हाईवे हम लेके आए 375 किलोमीटर के बाद में ये वाला पंप आता है, इसको बोलते हैं कैंप 381। अगर आप गूगल में कैंप 381 क्यूबक लिखोगे तो आपको यहाँ तक लेके आएगा आपका मैप। एक चीज मेरे को बड़ी सरप्राइजिंग लगी, मेरे मोबाइल के ऊपर सीधी आप किसी को कॉल करते हैं वो नहीं हो रही, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल हो रही है और व्हाट्सएप के ऊपर हम बात कर सकते हैं। बल्कि एक टावर आ रहा है, मालूम नहीं मेरे पास में रॉजर है और सैटेलाइट से कनेक्ट है या कैसा है, लेकिन बीच बीच में मेरी बात होती आई है। और दूसरी चीजें कि रास्ते में मैंने कहीं पे भी रोड के ऊपर, कोई भी रोड साइड के ऊपर ट्रक लगा हुआ नहीं देखा रात को। कोशिश करो यहाँ पे आ जाओ, लेकिन रास्ते में पुल आउट एरिया हैं, आप मजे से किसी भी पुल आउट एरिया के ऊपर सो सकते हो। मैंने जितना हिसाब लगाया, बाकी जाने के टाइम में कुछ चीजें ऐसी हैं जो देख के आए हूँ आपको दिखाऊंगा। कुछ बंद घर ऐसे बहुत सारे देखे जिनमें कुछ कोई रह ही नहीं रहा। लेकिन फिलहाल अभी रात के 12 बजे पहुंचे तो सुबह 8 बजे मेरी लॉग बुक चलेगी, तो मेरे को यहाँ से फिर वापस 30 किलोमीटर जाना है और फिर 100 किलोमीटर अंदर जाना है। 130 किलोमीटर हो गया अपने को। अभी भी यहाँ पे डिलीवरी करनी है और डिलीवरी करने वाली जगह पता कहाँ पे, हडसन बे। सुना है आपने हडसन बे? वो हडसन बे के बिल्कुल पास में, बल्कि कहाँ पहुँच गए हम, विनीपेग से। अगर आप मेरी लोकेशन डालोगे तो अभी डाल के देखो, विनीपेग से कैंप 381। तो मैं भाई किधर नॉर्थ में
नॉर्थ ईस्ट में। आज अपने को नॉर्दर्न लाइट भी दिख गई, देखो काफ़ी तगड़ा जुगाड़ है। ये अभी अभी गाड़ी आई, इसके पीछे बोर्ड डाली हुई है। ये गाड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये भी अभी आई। मेरे को लगता है कि अभी भी ये प्लाजा ओपन है, रात को भी आप अंदर जा सकते हो, कुछ खरीदना है खरीद सकते हो। लेकिन मैं एक बार अपना पोस्ट ट्रिप कर लूँ। ये आपका इतना इसने साथ दिया है, आपको यहाँ तक लेके आया है, तो रात को बंद करने से पहले मैं एक बार इसको ज़रूर देखता हूँ कि भाई तेरा क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है तुम। हालांकि मच्छर ने मेरा बुरा हाल कर दिया। सारा कुछ ठीक है, बाबा जी की कृपा है। एक बार टायर सारे चेक कर लेते हैं, फिर सोते हैं। क्या मैस बनी हुई है देखो नीचे, अभी सारी मैंने समेटूंगा। ड्रोन का डिब्बा पीछे जाएगा, ये मेरा वेपन हो गया, ये मैंने इसमें से निकाला हुआ है। क्या बन क्या रहा है यहाँ पे, ये बैटरी है, ये आएगी इसमें, ये आएगी यहाँ पे। इतना भी बुरा रोड नहीं था, देखो 1115 किलोमीटर मैंने निकाल दिया और मेरे पास अभी 20-25 मिनट बाकी हैं। तो जैसा रोड था उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया रह गया हमारा। अभी ट्रक एक बार ठंडा कर लें, एसी लगाया हुआ है मैंने फुल करके, फिर बाद में इसको बंद करते हैं। अभी तो यहाँ पे डिलीवरी करनी है ना, मैं अभी मैप में देख रहा था तो डाल के देखो ईस्ट मेन क्यूबक, तो बिल्कुल हडसन बे के पानी के पास में कोई टाउन है। अभी वहाँ पे जाके देखेंगे वहाँ पे क्या माहौल है और सुबह किस भाव व्यक्ति है हमारे साथ में, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन इस टाइम के ऊपर शोकर निकल रहा है कि रात को 12 बजे पहुंचे, लेकिन पहुंच गए ठिकाने के ऊपर जहाँ कम से कम आसपास में बंदे तो है। चलो ठंडा मौसम तो नहीं है, लेकिन नया एक्सपीरियंस है। नई जगह पे आगे जाके थोड़ा सा डर सा तो लगता है कि भाई कहीं पे सोए हुए हैं, मालूम नहीं कैसा माहौल होगा कैसा नहीं। यहाँ कम से कम इतना तो मालूम है ना कि माहौल ठीक है। आ जा रहे हैं लोग, यहाँ पे लोग अपना स्टॉप बना रहे हैं। मेरे को लगता है कि मॉडल भी है साथ में, अगर आपने रूम लेके रहना है तो रह भी सकते हो। बाकी मैं पढ़ूंगा अभी बैठ के, तो कल सुबह आपको मिलता हूँ। फिलहाल मैं इतना थका हुआ हूँ कि बात छोड़ दो, सुबह कितने बजे के उठे हुए हैं, रात को भी कम नींद ली है। क्योंकि जिस दिन नई जगह पे जाना होता है ना, तब तो अपना दिमाग ना थोड़ा सा खराब हुआ होता है, लेकिन अपने आप को संभाल के बैठना होता है सीट के ऊपर कि नहीं, ये लोड खाली करके सही सलामत वापस जाना है अपने बच्चों के पास में। ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं भाई। ठीक है भाई, इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी की बात आपको सुबह मालूम पड़ेगी। नॉर्थ में पहुंच चुके हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा। Bonnie and Clyde, you can have whatever you